Yeah, just let us connect and let me cross check the sound as well. And yeah, I think we are live, and let me cross check the sound as well quickly. Yeah, fine. I think okay, we can start. So first of all, thank you once again, Dipanshuda, to for joining this for this Yeah, conversation and continuing our discussion from yesterday. Yesterday we outlined and we discussed high level of what exactly the background. So if I just pull out the agenda we have discussed yesterday, we have actually touched base primarily. These are the point which is highlighted in bold. So we discussed about early discussion of AI, or how exactly actually AI got introduced, what are the various stages, and who coined the term. We got to know that AI progression these years, how exactly we are progressing right now, what stage we are in, how we came to this stage where we are today, and then recent key development. We discuss about high level. Again, we will continue that. From that point only, we will go deeper into this, that what are the key developments has happened or about to happen in the field of AI, and we will briefly discuss about Chat GPT and its implication and pros, cons, utility, and other tools which is in this similar stack, and which will add value to our viewers to know that there are not only Chat GPT, there are many other AI tools available, and which can be ready to, it is ready to use for our or for viewers to consume. Okay, so we'll discuss that in detail. So that's the background. Thank you once again for your time today. Without delay, let's get started. So I will just continue from the point we were in. The recent key development, we highlight that how exactly चैट जीपीटी कैसे स्टार्ट हुआ, उससे पहले क्या ड्राइव किया चैट जीपीटी को, हुआ कैसे, क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल है. वी डिस्कस अबाउट दैट. डेटा के साथ वी हैव कंप्यूटेशनल पावर, वी हैव एज वेल एज स्टोरेज कैपेसिटी, एंड दीज ऑल stitching up to create a powerful model which can literally understand and interpret human language, right? And it can do all sort of arrays of actions and activity dependent on the language right now, say, referring to Chat GPT. And there are other set of tools also. I want you to address them and take the discussion forward from this point. Over to you, yeah. Dipanshu. So thank you, Devasis, for a very fine introduction. Thank you. And we had a very good discussion on natural language processing yesterday, जहाँ पे हमने बात किया था, अगर हम सिंपल शब्दों में समझाएं, तो हमने बात किया था कैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की इंट्रोडक्शन एआई में जब हुई थी, तो हम समझ सके कि जो लोग हमसे बात कर रहे हैं, जो हम डे टू डे कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें अगर हम एआई लगा दें तो कैसे हम टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिनको हम सर्विस दे रहे हैं वो हमसे हैप्पी हैं, कि दे हैव सम इश्यूज विद अस, और अगर हम टाइमली करेक्टनेस रह सकते हैं। तो अगर आप एक कंपनी बताइए, इनका मार्केटिंग प्लान है, लेट्स सपोज से कि हमें हाई एंड कस्टमर्स रोकने हैं, ठीक है, हमें आइडेंटिफाई, हमें मेक श्योर करना है कि प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हमारे साथ रहें, तो उन Yes. कस्टमर को कैसे मैनेज करना, उनको प्रोएक्टिवली रीच आउट करना। और जो लार्जर हमारा कस्टमर बेस भी है, अगर वो हमारे फ्रंट एंड एसोसिएट से इंटरेक्ट करता है, जो हमारे फ्रंट एंड कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उनको कैसे एक असिस्टिव प्लेटफॉर्म मिल जाए जो एनएलपी पे बेस्ड हो, जिसके थ्रू वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो कस्टमर हमें बात कर रहा था उसका सेंटिमेंट क्या है। तो हम एक सेंटिमेंट स्कोर जनरेट कर पाएंगे, चाहे पॉजिटिव सेंटिमेंट हो, नेगेटिव सेंटिमेंट हो, न्यूट्रल सेंटिमेंट हो। और उसके बेसिस पे हमें समझ में आएगा कि अगर कस्टमर नेगेटिव या न्यूट्रल सेंटिमेंट है, तो ऐसा हम क्या एक्शन लें कि कस्टमर रिस्पॉन्ड करे पॉजिटिवली। मे बी अगर कस्टमर लेट सपोज से बिलिंग से परेशान है, कि उसको अनड्यू बिलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा हाई बिलिंग आ रही है, तो हम उसको ऑफर पैकेज कर सकते हैं कि देखो ये ऑफर पैकेज है, आप
आपको लगता है कि आपको टिकना चाहिए हमारे पास, अगर वो हमारा ओल्ड कस्टमर है तो कस्टमर इंटरेस्टेड होगा। मतलब कि हम टारगेटेड, एक टर्म यूज होती है मार्केटिंग में, नेक्स्ट बेस्ट एक्शन। हम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन ले सकते हैं तभी जब हमें कस्टमर की पूरी प्रोफाइल इंटरप्रेट कर सकूं बेस्ड ऑन उनका कन्वर्सेशन हमसे जो हो रहा है। तो एग्जैक्टली। कन्वर्सेशन के बेस पे हम टाइमली एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना, इसी का एडवांस्ड स्टेज है जो कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि चैट जीपीटी और इससे भी यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, दे आर समराइजिंग द कन्वर्सेशन, ठीक है, एंड दे आर वर्किंग लाइक असिस्टिव राइटिंग। जैसे चैट जीपीटी में जो जीटीबी, जीपीटी का मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ओके। अब ये करता क्या है, मतलब कि अगर मैं बात करूं, मैं कन्वर्सेशन कल ही पे ले जा रहा हूं, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात करूं, जैसे एनएलपी के बारे में हमने बात किया था, तो चैट जीपीटी एनएलपी का ये एडवांस्ड वर्जन जिसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग, ठीक है। ओके। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एनालिसिस करता है, समरी क्रिएट करता है, वो असिस्टिव राइटिंग क्रिएट कर सकता है, असिस्टिव मदद कर सकता है। जैसे कि मान लो आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, आपने आधा पॉइंटर्स दिया, वो आपको मदद कर सकता है कि बेस्ड ऑन योर थॉट प्रोसेस ये पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए। और जैसे आपका एक जारविस करके है एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, वो आपका क्या करता है, आप उसको आइडिया दोगे, वो एक मार्केटिंग पिच आपके लिए क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो आप जैसे इनपुट्स उसको फीड करोगे, उसके बेसिस पे इनपुट आपके लिए प्लान कर देगा। अब जैसे चैट जीपीटी का भी वही है कुछ, आप उसको स्ट्रक्चर दे दो कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, उसके हिसाब से वो आपके लिए पांच, ये 3 सेकंड में आपके लिए मार्केटिंग, फुल फ्लेजेड मार्केटिंग प्लान्स क्रिएट कर देगा। और उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जो ईयर है ना, मैं ये अभी बात करूंगा स्पेसिफिकली, ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का बैकग्राउंड क्या था, बेस क्या था, वो था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। उसी यस। का एडवांस स्टेज है। बट क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पूरा मैच्योर हो गया है? द आंसर इज नो, ठीक है। इस साल क्या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग पे? द आंसर इज यस, ठीक है। आंसर इज ह्यूज यस। सो 2023 पे आप देखोगे कंपनीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे बहुत इन्वेस्ट करेंगे, बहुत तैयारी करेंगे। लेकिन अगर आप समझोगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे क्या लोग सब फटाफट नहीं जाने का कोशिश करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि आज के डेट में इस चीज पे पैसा है। जबकि किसी के पास रेवेन्यू मॉडल नहीं है अभी कि हम इसको कैसे इससे पैसा कमा सके, लेकिन लोग सब इसमें कुछ ना कुछ बना के फटाफट देना चाहते हैं अपने आप का मेटल प्रूव करने के लिए। तो कहीं इससे जो लैंग्वेज मॉडल्स को उसको आप अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, तो जो आउटपुट आएगा आपका वो कभी अच्छा नहीं आएगा। और आपका मतलब कि वर्क आपका बेस्ट इन क्वालिटी नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग सब भुनाने का कोशिश करेंगे, बिकॉज जस्ट टू गिव यू एन एस्टिमेट, ठीक है। एआई पे टिपिकली सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ प्रेडिक्टेड था 50 to 60%। बट मैं कह रहा हूँ कि ना, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ चैट जीपीटी ये 50-60% तो बहुत नॉर्मल है यार। आज की रेट हर साल पे जो ग्रोथ होगा, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इट गोज टू द ट्यून ऑफ 70%, ठीक है। चाहे नो। वो चैट में, चाहे वो बैंकिंग में, चाहे वो हर चीज में। आप आप ये यूज करके आप कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, अमेजिंग चीजें कर सकते हो। फिल्म राइटर स्क्रिप्ट राइटर फिल्म फिल्म की स्टोरीज लिख सकता है, नॉवेल राइटर नॉवेल का स्टोरी लिख सकता है, ठीक है। ये इतना प्रिवलेंट हो रहा है कि तुमने सुना होगा देवशीष कि चैट जीपीटी एक नया चीज रिलीज किया है, जिससे पहचाना जा सके कि आपका जो स्टोरी है जो आपने लिखा है, दैट वो इज एआई ने लिखा है कि आपने खुद लिखा है, करेक्ट। ठीक या है। आई यह आई वो नोटिस्ड इट। वो खुद हो रहा है। तो ये आप आप ये समझो कि बेस जो है, हम आपको जिस चीज का बात कर रहे थे, इट्स ऑल अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग, ठीक है। करेक्ट। या लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग पे ही हमारा बेसिक चीज चल रहा है, जो कि जेनेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर का जो जिस पे चैट जीपीटी बिल्ट है, वो भी उसी कंसेप्ट को यूज करता है, ठीक है। एग्जैक्टली। दिस नाउ या या सी द देवशीष। क्वेश्चन इज, हम लोग सुन रहे तो इतना चैट जीपीटी के बारे में, एंड एप्लीकेशन आल्सो सही है, एज पर इवैल्यूएशन आई कैन रिलेट आल्सो। बहुत सारा प्रैक्टिकल यूज केसेस है, बट इज इट ए हाइप और इट इज रियली गोइंग टू बी transformative, and it is unlike any other technology which we have experienced so far. The ओके दैट्स reason I am curious, इट। सिमिलर लाइक एमएल एआई लेके बहुत सारा हाइप है, राइट? एंड प्रैक्टिकली में अगर मैं देखूँ ग्राउंड रियलिटी,
it's very difficult to get ROI from these kind of assets and tool, right? Very difficult. ROI, to generate ROI, it is a humongous task itself, and since it is predictive, it takes also a lot of time. So, and on top of it, there are resource crunch in this kind of area. Now, my question is this: is it there is any possibility of hype, and agar hai to which part? That's a brilliant question actually, Devasys, because see टेक्नोलॉजी में ना हम होते हैं ना हाइप हम पहले क्रिएट करते हैं लेकिन एक्चुअली फ्यूचर रियलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं पॉजिटिव क्यों इस बारे में because let me try and tell you why it will not be a hype. Yeah, it could have been hype, let's say, starting of the year 2022. After 2022 जिस वजह से खत्म हुआ है, it is no longer a hype. Because जैसे ट्विटर हो गया या कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, चाहे एलॉन मस्क हो या एवरीवन है, everyone is trying to invest hugely in AI. Nobody is taking a step back कि भैया अब हमको AI नहीं करना. Everybody wants to invest in AI so as to make sure to understand how the reach is going to be in the future. The reason for doing AI is also that how to provide help, time bound help. उसके negative aspects भी है, अलग बात है, लेकिन लोग सब understand करना चाह रहे conversation पे. एक सऊदी अरेबिया में एक अरबिक लैंग्वेज में क्या कन्वर्सेशन हो रही है, एक हिंदी में क्या कन्वर्सेशन हो रही है, एक जापानीज में क्या कन्वर्सेशन हो रही है. What is that ties up all of these elements? Okay. What is up which ties all of these elements? How can we breach the next boundary to provide better support to the mankind? That is what is very, very important. तो चैट जीपीटी जो है ना, ये भी एक कहूंगा ना एआई के जर्नी में एक वन ऑफ द एलिमेंट है. ठीक है, लेकिन तो अभी मैं बात पे पता नहीं मैंने तुम्हारी क्वेश्चन को एड्रेस किया कि नहीं किया हाइप के बारे में. तुम्हारी हाइप वाली क्वेश्चन को मैं इस वजह से एड्रेस करना चाहूंगा. यस यार देखो, हम एआई बहुत सालों से सुन रहे हैं, एआई कहते भी हैं, मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस भी करते हैं, लेकिन हार्डली कोई सिग्निफिकेंट मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस हो रही है. जबकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एमएल फिर भी अप्लाई हो रहा है, एआई फिर भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन बैंकिंग में भी हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा पर्कुलेटिव यूसेज नहीं है. लेकिन अब मैं बताऊं, चैट जीपीटी ने काफी हद तक प्रूफ कर दिया है. अरे यार, जो गूगल सर्च जिसने अपना डोमिनेंस बना के रखा है इतने सालों, अगर उनका 5% मार्केट शेयर भी घट जाता है तो इसका मतलब है कि उनको खतरा पता चल रहा है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी रेलेवेंट. बिंग का लिटरली मार्केट शेयर बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन चैट जीपीटी इन द प्लेटफॉर्म. And people are trying to do something with AI because they realize the vast opportunity which it is opening for us. Okay, everything बन सकता है. आप उम्मीद कर सकते हो, लेट्स से आप कार बात कर रहे हो तो हम कार में जो है ना, फ्यूचर इज नॉट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूचर इज अबाउट पैच अपग्रेड्स. कार में हमको एक नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड कराना है, हम बोलेंगे कि यार अपग्रेड कर दो सॉफ्टवेयर, वो अपग्रेड हो जाएगा. ठीक है, कार, मैन्युफैक्चरिंग, बाइक्स, एनीथिंग एल्स में वहां अपग्रेड सॉफ्टवेयर का रोल प्रेवलेंट होगा. ठीक है, और इस साल इफ इफ आई एम नॉट saying a very highly what I would characterize as that I'm trying to make a very responsible statement when I'm trying to say that this year AI will fly like anything. Okay. This year you will see more platforms gaining traction, and at the end of the year there will be fierce competition between Microsoft and Google, with a huge probability of other major players like Amazon and others coming up with their own approach for AI, okay, which is built on generative large language models to address this growing market needs. ठीक है, अभी तो हमने चैट जीपीटी के एप्लीकेशन तो बात ही नहीं किया. जब हम उसमें आएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि हम क्या क्या नहीं कर सकते चैट जीपीटी से. Exactly. In fact, I also actually collected few of the pointers जो हम लोग discuss कर सकते हैं. And you know, if you can see my screen, I actually searched that does ChatGPT is hype to ChatGPT, and the response is I always like I enjoy this. By the way, the reason is I wanted to see. I'm not going taking it granted, but the response which is again, it's so genuine, right? Look at this. A language model does not have a personal opinion, but it's true that OpenAI ChatGPT has generated a lot of hype and excitement in the AI community. This is due to its impressive natural language processing capability and its ability
to perform a wide range of language tasks. This is very interesting point, like language tasks, right? Such as language translation, summarization, question answering, and even creative writing, right? This is I'm really interested. Now, creative writing ko, how can I evaluate creative writing? I had no, why I'm telling you that अगर मानिए मैं बोलता हूँ कि अच्छा मेरे को एक summarize something or this creative writing, how do I evaluate that creative writing? ये सारा क्वेश्चन मेरे माइंड में है. Imagine you are saying that चलो एक स्क्रिप्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, it's writing script and stories and so, but can we evaluate that, is it really fitting into it, and how can we decide, how can we evaluate that creativity? Do we even require it? Because I wanted to say, I want to No, compare between that's human and this AI generated no, creative that's a artifacts. brilliant question. एक hypothetical example लेता हूँ. Let's suppose say किसी को typical Bollywood मसाला फिल्म बनानी हो जो कि ऑडियंस को हिट करती हो. ठीक है, लेट्स से अभी जैसे पठान बनी है स्पाइवर्स में. ठीक है, तो वो उनको बस क्या करना है, उनको इस टाइप की फिल्म्स का मसाला लेना है, जितनी इस टाइप की फिल्म बनी है, जितने बॉलीवुड में बनी है, उनका रेवेन्यू डालना है कि किस टाइप की फिल्म की क्या रेवेन्यू बनी है. तो उनको एरा में डिवाइड करना है. 50 से 70s में कैसे बनती थी, 70 से 90s में कैसे बनती थी, 90 से 2000 में कैसे बनती थी, 2000 के बाद कैसे बनती थी. वो फिल्म्स का लाइब्रेरी कनेक्ट करना है, फिल्म्स का लाइब्रेरी का बुक डाल देना है. ठीक है, उसको और उसको फिर फर्दर कैटेगराइज करना पड़ेगा. एक उन्होंने कंटेंट अपलोड कर दिया, फिर कैटेगराइज करना पड़ेगा. इमोशन में ये मूवीज का ये सीन्स है जो कि इमोशन के लिए स्टडी किया जा सकता है. एक्शन में ये सिनारियो है जिसको एक्शन के लिए स्टडी किया जा सकता है. ठीक है, अगर आप पैरामीटराइज कर दोगे, हर एक मूवी को डालने के बाद पैरामीटराइज कर दो कि ये एक सेक्शन पैरामीटर है, ये सेकंड सेक्शन ऑफ पैरामीटर, ये 3 सेक्शन ऑफ पैरामीटर, ये 4 सेक्शन ऑफ पैरामीटर है. फिर आप अपने इनपुट्स देना है कि चाली करो कि मैं ये चाहता हूँ कि लेट्स सपोज आई वांट टू क्रिएट अ स्पाई फिल्म विद दिस एज अ बैकग्राउंड, दिस एज अ स्टोरी लाइन, and based on the inherent knowledge which you have by reviewing movies of multiple eras in India, can you create a movie script for me? ChatGPT will do it for you in 3 minutes. Or any other platform which takes movies as a processing time, it can create a movie for you. It can create an engaging movie for you in literally 2-3 minutes. And the biggest part will be that whichever AI platform will be used, it will be quick to realize which pattern or which theme has not been used a lot. Okay, which theme has a huge potential for success. So how we can combine both those themes to create something which will not only have a recipe for success, but it will also be approved by critics. ठीक है, it can combine both of these elements because we have fed them multiple kind of movies. हम जहाँ उनको 8 मूवीज फीड कर सकते हैं, जैसे श्याम बेनेगल हो गए, गोविंद निहलानी की मूवीज, हम उनको कमर्शियल मूवीज भी फीड कर सकते हैं जैसे करण जौहर एंड सो ऑन एंड सो Got फॉर्थ. it. Okay. ठीक है, तो उसके हिसाब से So, वो समझ जाएगा कि क्या हमको जनरेट करना है और वो स्क्रिप्ट बना के दे देगा. और वो आपको यहाँ तक मदद कर सकता है, अगर मैं इफ आई एम गेसिंग राइट कि मान लो कोई एक्टर है, उनके एक्टर के पैटर्न पढ़ के और बेस्ड में अगर आप यूएस के एक्टर का पैटर्न दे दो, इंडियन के एक्टर का पैटर्न दे दो, कस्टमर को क्या पसंद है, एंड यूजर को क्या पसंद है, तो वो बता देगा एक्टर को, हे आप अपनी एक्टिंग ऐसे करेक्ट कर सकते हो, एक्टिंग को ऐसे सुधार सकते हो. सोचो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, मतलब कि वो फिल्म इंडस्ट्री को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर देगा. देखो, ये जो चीज है ना कि क्रिएटिव राइटिंग जो है, एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिव राइटिंग है जिसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम कुछ सालों में हम क्रिएटिव राइटिंग में भी हम जो स्टोरीज है हमारी काइंड ऑफ मिसिंग हो गई है. ठीक है, तो अगर चैट जीपीटी आ गया ये उसी को कैरी फॉरवर्ड करेगा, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे एकदम ओरिजिनल लाने के लिए, ओरिजिनल तो ब्रेन ही होता है, चैट जीपीटी भी ओरिजिनल क्रिएट कर देगा, लेकिन वो ओरिजिनल क्रिएट करेगा उसका थीम कहीं ना कहीं जो एक से पुरानी स्टोरीज हुई है उस पे मिलता है. exactly. ठीक If है, you can see my screen, I searched that only, that what are the movies actually script written by AI. It's not new, by सी the way. It's already there are, सनस्प्रिंग इज Sunspring वन सच and मूवी Zone है, Out. These are जोन आउट, द actually लास्ट script रिक्वेस्ट. written by, yeah. So this is pretty impressive, right? Because it is already, and you can see 2016 onwards, it is there. And I need to know the review of this kind of movie. And this is on GPT-3 only. Okay, The Last Request. This is a short film that was co-written by AI language model called GPT-3. So this is Yeah, written in exactly. GPT-3 only, right? So
Yeah, when we deep drive, or let's say one particular topic, as I mentioned, specialized कर सकते हैं, that customization is possible based on the data set we provide. So या और interesting point. हमारे Yeah. व्यूअर्स के लिए अगर ये मूवीज यूट्यूब पे है अवेलेबल, तो हम इनका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे अपने कन्वर्सेशन के बिलो। आप इन लिंक पे जाके देख सकते हैं जो भी मूवीज अवेलेबल होगी। Absolutely. Yeah, yeah, ओके। yeah. We will share that. So, in fact, I also need to go and cross check, and I'll share these so that people can review and understand how exactly these are. Like, what is the level? Is it like human? Because we saw our art film, we can compare actually. One after review only we can comment that how good it is and what is the how they have created that script, right? So fantastic. Okay, heading Exactly. back to our topic again. So if I go to, okay, I was talking about you were highlighting that क्या background है क्या है. So can we talk about little bit if I go to the agenda list? Give me a second. Let me navigate through. So we discuss okay, word and introduction ChatGPT. I think we already had it, but इसके ऊपर I just want to tell you there are, as of now, there are more than 100 things we can do, or more than, like, it is unlimited right now that we can do and achieve with ChatGPT. मैं कुछ example यहाँ लाना चाहता हूँ, क्या main, if you say massive impact right now only it is started giving, क्या क्या कौन से एक्टिविटी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, एंड द आउटपुट इज रियली गुड, क्योंकि वो अभी सी वी कैन कीप ऑन हैविंग ए कन्वर्सेशन on possibility and not possibility and challenges and all, but what it is giving tangible output today, that I am keen to know from your end. या देखो, ये चाहे टेंजिबल आउटपुट दे ही तो रहा है कि जैसे देखो, अगर आप एक एक सिंपल सा एग्जांपल देते हो कि मान लो कि आपका बॉडी वेट 85 kgs है। आप बोलते हो कि हमको अब अपना बॉडी वेट रिड्यूस करना है 10 kgs। Mm-hmm. हमको एक प्लान चाहिए। आप चैट जीपीटी में जाओ कि माय वेट इज 85 kgs, आई वांट टू रिड्यूस माय वेट इन 30 days। My body criteria is this. This is my blood test report. This is my this test report. Once you upload these things, चैट जीपीटी आपका एक ऑटोमेटेड आपको एक जनरेट करके दे देगा आपका पर्सनल फिटनेस प्लान। Mm-hmm. पर्सनल Mm-hmm. फिटनेस प्लान दे देगा कि ओके, दिस इज द पर्सनल फिटनेस प्लान, यू कैन फॉलो इट। और उसमें लाइन पे जोड़ देगा, इट वुड बी बेटर टू कंसल्ट योर जिम ट्रेनर एंड अदर्स आल्सो, बट वो आपके लिए कस्टमाइज्ड प्लान दे देगा। अगर आप उसको Okay. हर दिन इवेलुएट करोगे कि मैंने इतना चीज कर लिया है, तो उसमें कितना हमको प्रोग्रेसिव डेज और लगेगा इतना इम्प्रूव करने में, तो चैट जीपीटी आपको उसमें ही मदद कर देगा। आपको एग्जैक्ट दे देगा कितने टाइम में आप इतना वेट रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल ट्रेनर ही नहीं हुआ। मान लो कि लेट्स से आप अपना छोटा सा कहानी लिखना चाहते हो, या लेट्स सपोज से आप अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो, आप ट्विटर पे कुछ पोस्ट लिखना चाहते हो, आप लेट्स से 10-15 एक टॉपिक पे कंटिन्यूअस लिखना चाहते हो, तो आप Mm-hmm. चैट जीपीटी लगा दो, वो हर दिन आपके लिए नया पोस्ट क्रिएट कर देगा, और वो पोस्ट को आप सब पेस्ट करते रहो, और आपका एक लिंक थ्रेड चलते रहेगा, आपका 1 साल तक चलते रहेगा। Exactly, तो with the help तो of ये API integration. हम्म I तो agree, I agree. ये मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए थे। मतलब आप कुछ भी क्रिएट करा सकते हो। आप चैट जीपीटी पे जाके कुछ भी बोल सकते हो कि यार मुझे ये चाहिए, क्या तुम मदद कर सकते हो मेरी। वो मदद कर देगा आपको, आपको बता देगा कि अच्छा ठीक है, इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करें। ओके, इन अदर वर्ड, ओके, अभी तक आपने सबसे कॉम्प्लेक्स चीज आपने क्या देखा है, और एज यू हैव ऑब्जर्व कुड बी डन एंड अचीव, एंड यू आर काइंड ऑफ सरप्राइज दैट this is really useful, what is you have observed? I'll share a couple of which I really liked, and really those are useful. What do you देखो यार, what मैं is your, yeah. एआई से मेरा रिश्ता थोड़ा सा पुराना है कि मैं एआई तो नहीं कहूंगा, मैं मशीन लर्निंग और इमेज डीप लर्निंग की बात करूंगा। डीप लर्निंग में मैंने एक यूज केस बहुत पहले देखा था, और मैंने यूज केस पे काम भी किया था। वो Mm-hmm. यूज केस सिंपल था, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वाला था। Mm-hmm. अगर तुमने सुना होगा कि मान लो अगर बाइक एक्सीडेंट हो जाती है, तो एक Mm-hmm. इंश्योरेंस एडजस्टर आता है, वो बाइक का डैमेज असेस करता है, फिर आपको बताता है कि आपको इतना इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। फिर आप एक रिक्वेस्ट रेज करोगे, और फिर आपको वो पैसा फाइनली मिल पाएगा या रिजेक्ट होगा। ये पूरे प्रोसेस को होने में 1.5 months लगता था। Got लेकिन it. बाद में Mm-hmm. क्या किया, जब एक्सीडेंट होने लगा तो उसका हम फोटो खींचने लगे, और वो फोटो खींच खींच के जो पुराने 100 साल के इमेजेस होंगे, या मल्टीपल 100 मिलियंस ऑफ इमेजेस होंगे, उसको हमने डेटाबेस डाला, और हमने हर सिनारियो को कवर कर लिया। तो फिर उससे क्या होगा कि हमें पता चलने लग जाएगा बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ कार कि कितना पैसा उसको इंश्योरेंस में मिल सकता है।
तो जो आउटपुट को हमें 1 महीने लगता था और उसमें पर्सनल जजमेंट और बायस आता था, वो हम्म। काम अब हम 5 मिनट में कर सकते हैं। सो दिस वाज समथिंग विच वाज, आई सॉ इट डन यूजिंग एआई। ठीक है, तो ये एक वन एग्जांपल था, लेकिन इसके ऐसा एग्जांपल्स बड़े पड़े हैं मशीन लर्निंग में। वन ऑफ द एग्जांपल्स जो अगर टेक्निकल लोग हैं तो वो समझ पाएंगे कि जैसे वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल व्हिच आई हैव बीन रिपीटिंग इट फ्रॉम अर्लियर, कि लेट्स सपोज से कि अगर हमारे फ्रंट एंड एसोसिएट्स आपके एंड कस्टमर से बात करें, और अगर एंड कस्टमर हैप्पी नहीं है, और लेट्स से आपका चर्न हम्म। रेट बहुत हाई है, 10 से 15% है, तो आप उसको क्रेडिट कैसे कर सकते हैं इन कस्टमर चर्न रेट को? उसको क्रेडिट कर सकते हैं अगर आप एआई जर्नी को अच्छे से इंटरप्रेट करोगे, राइट टाइम पे कस्टमर्स को रीच आउट करोगे, तो कस्टमर को विश्वास होगा कि आप लिटरली सीरियस हो अबाउट द जॉब। फिर वो एग्जैक्टली। आपके लिए आपके आपके पास रुकना चाहेंगे। तो ये प्री असिस्टिव रेट जो है ना, इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये मैटर करता है, लेकिन उसके लिए आपको फुल राउंड अबाउट आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। कंप्लीटली एग्री। वन एग्जांपल राइट अवे मेरे को मिल रहा था, मैं लाइव जब था, एज यू कैन सी माय स्क्रीन, अभी हमारा जो कॉन्वर्सेशन गेटिंग लाइव, दैट इज लाइव गेटिंग ट्रांसलेटेड, ओके, एंड दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू बोथ द लैंग्वेजेस। इन हिंदी, जहां हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, एंड जहां हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली कैप्चरिंग इन इंग्लिश। सो सोचो, सोचो हमने हर सिनारियो को कवर कर लिया। हाँ। मतलब कि ये लिटरली हमें बता दे रहा है कि जो हम बोल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें हम अपने बातों से भूल भी जाते हैं, तो वो या कैप्चर करा है कि अरे भैया, हम तो तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, हमने तुम्हारे सिनारियो को कवर कर लिया है, और हम समझ पा रहे हैं कि तुम क्या बात करना चाह रहे हो। नहीं नहीं, तो ये ये ट्रांसक्रिप्शन है, एक्चुअली ट्रांसक्राइब है, मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया है, ये हम ही लोग बात कर रहे थे, बट आई मीन टू से बोथ दी लैंग्वेज में ये ट्रांसक्राइब कर रहा है, जस्ट इमेजिन, राइट? हाँ, तो वो कर सकता है। या अब अब देखो, ये इसका एम क्या है ना देवशीष। अच्छा देवशीष, तुम्हें क्या लगता है कि अब जैसे जीपीटी आ रहा है, इतना चीज तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अल्टीमेट गोल क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट। अल्टीमेट गोल? क्या अभी ले जाएगा? क्या फ्यूचर है एआई का? ओके, सी अगेन आई हैव वेरी नैरो अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ, मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट आई कैन टेल यू दैट फ्यूचर इज नथिंग बट यू नो क्रिएटिंग और bringing human to more connected towards technology, or or in otherwise, if I say that embed technology in human, that's where it is going. हम्म। Okay, so that's how I am seeing that these technologies are going. I don't know it is positive or negative, it could be both at this stage, right? या, But that's where it is heading up. All these एग्जैक्टली, परफेक्ट पॉइंट, परफेक्ट अभी ये पॉइंट किया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, इन अपकमिंग टाइम यू नो वेरेबल डिवाइस आर ऑलरेडी देयर, राइट? एंड इट्स ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय द वे। सो लाइव ट्रांसलेशन और लाइव लेट्स से बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन, लॉट ऑफ थिंग्स कुड बी डन, ओके। अभी तो ये imagine in investigation happening today, they do based on the experience, but जब AI उसको मॉडल basis आए, they wanted to check that what is the body language and is it lie detection, let's say, based on the body language and the statement I'm saying, and that statement is correct or not based on my previous comments in news, right? And based on that it can predict it. So I mean to say, bridging the gap between human and technology, that's where AI is heading. And if time will decide whether it is positive or negative, it would be यार too early देखो, to comment. Yeah. हम इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं, फिर हम और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजों पे ऑडियंस को ले जाएंगे। Yes. देखो, एक टर्म की लोग सब बात करते हैं विच इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी और एआई सिंगुलैरिटी। Mm-hmm. सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है, ये आप लोग को पहले समझना बहुत जरूरी है, ये इस टर्म पे भी बहुत डिस्कशन हो रही है। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है कि एक फ्यूचर पॉइंट होगा जब टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ या एआई ग्रोथ इतना अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, कि उस समय टेक्नोलॉजी आपका सिविलाइजेशन को चेंज कर देगा और आप उसको पीछे नहीं ला पाओगे। ठीक है, ये हो गया Mm. ये सिंगुलैरिटी। या फिर सिंगुलैरिटी का ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग प्रिडिक्ट नहीं कर सको, लेकिन उतनी तेजी से एआई ग्रो करने लगे। आप सोचो कि अच्छा, ये चीज तो नहीं आ सकता उसको, लेकिन वो एक्चुअली आपका एआई ग्रोथ कर दे। जो आपने रजनीकांत के रोबो फिल्म में देखा था ना, वो शायद वो रियलिटी भी बन जाए। ठीक है, इंडियन ऑडियंस के खासकर वो जो कंटेक्ट समझ रहे हैं, कि जो Mm. उन्होंने रोबो में 10 साल पहले देखा था, 12 साल पहले भी देखा था, वो एक्चुअली रियलिटी बन जाए। ठीक है,
कि तो वो टेक्नोलॉजिकल चेंज और एआई चेंज विल ग्रो अप टू लाइक दैट। लेकिन आज टाइम नहीं है लिमिटेशन की बात करने में, क्योंकि लिमिटेशन का बात करेंगे हम कभी और बात करेंगे जहां डीप टाइप में हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करना चाहते हैं अच्छी अच्छी चीजें हैं चैट जीपीटी के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में। अगर आप लोग को और जानना है तो वो बताइए, ऐसा ऐसा करके। Exactly, yeah, yeah. So if you can touch base couple of trend, अभी तो comparison चल रहा है chat gpt versus word versus other tools, उस पे if you can enlighten something and share some एग्जैक्टली insight. Yeah. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो हर का एक अलग अलग टेक्नोलॉजी है। जहां चैट जीपीटी यूज करता है जीपीटी, जीपीटी नाम में है GPT-3 विच इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी, जो कि अप्रोच है एआई का। उसका गूगल का बार्ड यूज करता है समथिंग कॉल्ड एज लैम्बडा। ठीक है, Yes, yes. लैम्बडा इज एन अप्रोच टू ट्रांसफॉर्म इट्स एआई। लेकिन उनका अभी आजकल लोगों ने सोचो एआई इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ ही दिन पे, एक सप्ताह पहले एक इंसिडेंट हुई है। गूगल से किसी ने पूछ दिया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस का सबसे पहले फोटोग्राफ किसने पूछा था कि खींचा था, तो उन्होंने लिख दिया जेम्स वेब टेलीस्कोप। लेकिन ये पता चला गया कि नासा ने डिस्कवर किया कि नहीं नहीं नहीं, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नहीं, 2004 के एंड में यूरोपियन स्पेस लेबोरेटरी ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार इसको इमेज कैप्चर किया था। Mm-hmm. बस ये अनाउंसमेंट हुआ, गूगल के शेयर्स $100 बिलियन डिक्लाइन कर गए थे। ठीक है। Wow, wow. अब आप Yes. सोचो कि पब्लिक को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। लेकिन Mm-hmm. क्या अगर हम जैसे कन्वर्सेशन चालू किए थे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, अगर जो Mm. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे सीरियसली इन्वेस्ट नहीं करेगा तो आपको नहीं लगता कि मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगा? ऑफ कोर्स मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगा और लोग से उसको सच मानने लग जाएंगे। ठीक है। Absolutely. Yes. लेकिन उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चैलेंजेस क्या है, चीजें क्या है। तो ये हो गया दोनों चीज। अब हम आते हैं कि अब हम तुम आते हैं, देवशीष खोल के दिखा भी सकते हो तो, कि जो Yeah. टूल्स, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना, आपने गूगल के बार्ड का नाम सुना, लेकिन आप डेली यूजर है तो देयर आर टू मेनी प्लेटफॉर्म जो कि एआई में वंडरफुल है। तो पहले हम चालू कर रहे हैं stockimg.ai। ये आपके Mm. लिए जो ब्रिलियंटली, देवशीष थैंक यू देवशीष फॉर शोइंग इट ऑन टॉप ऑफ द पेज। ये आपके लिए पोस्टर क्रिएट कर देगा, लोगो क्रिएट कर देगा, वॉलपेपर क्रिएट कर देगा, टीम्स के लिए स्टॉक इमेज क्रिएट कर देगा। ठीक है, आइकन क्रिएट कर देगा ये stockimg.ai। ठीक है। उसी के बाद उसी की तरह और भी प्लेटफॉर्म है, एक है यूजर, व्हाट इज द नेम देवशीष, यू से जो हमारा था। Yeah, another is there are a couple of another is we kept is yeah usechannel.com, ओके, usechannel.com. So मैंने यूज यहाँ चैनल एक डॉट कॉम, yeah यूज चैनल डॉट कॉम खोल दो देवशीष। अब यूज yeah चैनल डॉट कॉम क्यों इंटरेस्टिंग है, और ये खासकर किन के लिए इंटरेस्टिंग है, जो कि आप डेटा एनालिस्ट काम करें। अगर आपको मैं ये बताऊंगा तो आपको सुन के बहुत गुस्सा चढ़ेगा। mm-hmm. मान लो आपका एक एप्लीकेशन डेटाबेस है और आपने डेटाबेस को सीआई प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया, तो आप प्लेन सिंपल लैंग्वेज में आप उनसे डेटा का क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो आपको ग्राफ के साथ बना के दे देगा फटाफट। आपके डेटाबेस से कनेक्ट करके 3 सेकंड में आउटपुट जनरेट कर देगा। तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में आप जरूर देखिए। ठीक है, फिर या से नाम बता दो। मैं भी एक्चुअली क्रिएट कर रहा हूँ। आई गिवन दैट ब्यूटीफुल गर्ल विथ क्लाउड, इसके ऊपर में एक इमेज पोस्टर क्रिएट कर दिया है। आई एम जस्ट हाँ, वो आपने किया होगा stockimg.ai से। यस यस। इससे देखिए, आप दिखाइए लोगों को, हमारे ऑडियंस को दिखाइए स्टॉक इमेज से कितना जल्दी क्रिएट हो गया। दिखाइए। तो मैं यहाँ लाइक आई वांटेड टू create a image based on this, so it is getting generated right now. तो इस image में actually it is created by AI itself, right? There was a problem, okay, it's not able to generate that, but let's say simple, okay, garden का एक image I am asking to create and this is AI generative. इसमें कोई copyright वगैरह कुछ नहीं होगा. The creative uses are there. We can definitely use creatively this kind of content because I have certain thoughts and I don't have a specific images, and images is there, but those are like हाँ okay, जी, देखिए। like chargeable, right? Now this is generated by AI itself. Garden images, right? Okay, garden. Wait. Okay, if I highlight it, और good. Okay, आपको एक चीज of मैं फिर course. बता दूं कि जब Hmm. आप हमारे वेबसाइट पे हमारे लिंक में जाओगे तो हमारे लिंक में यूट्यूब लिंक के नीचे आपको
सारे के सारे ये एआई जो प्लेटफॉर्म है इनका लिंक मिल जाएगा। यस, ठीक है। वी विल शेयर दैट ऑल्सो। अभी ये नेक्स्ट वाला मैं जा रहा हूँ, इसके बारे में अगर थोड़ा आप टच बेस करें, आस्क हाँ, एनी न्यूज डेटा चैनल क्वेश्चन ये इन ए क्या है, प्लेन। ये डेटा एनालिस्ट वालों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा सा दुख भी हो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, हम्म। ठीक है, तो आप हम्म। उससे चैट प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर दो, तो और फिर आप प्लेन सिंपल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछो, डेटा का क्वेश्चन पूछो, आप हमको ग्रोथ दिखा सकते हो, वो आपको इस तरह के ग्राफ बना के फटाफट दे देगा। सो देवशीष, अगर तुम ग्राफ शेयर करोगे किस टाइप के ग्राफ क्रिएट करता है, तो ओके, ये आपको ग्राफ्स, आई चार्ट्स। कैन सी ऑल दी लाइक बार ग्राफ्स, चार्ट ग्राफ्स, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको कैसा रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, बेस्ड ऑन दैट इट इज ओनली हाईलाइटिंग, एज आई कैन सी हियर, राइट? सो ओके। दिस इज देन एक प्लेटफॉर्म है जो आपका चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है। या आई एम चैट वेरी सोनिक, एक्साइटेड अबाउट दिस ओनली, या या चैट सोनिक। स्टार्ट चैटिंग, लेट्स सी क्या इसमें बोला जाता है। एंड ओके, इट इज आस्किंग ओके साइन इन तो एटीपी, ओके साइन इन विद गूगल ओनली। एंड इसको मैं देखना चाहता हूँ, अगर राइट सोनिक, द बेस्ट पार्ट व्हाट आई ऑब्जर्व अबाउट राइट सोनिक इज इट नॉट दैट्स ओनली create and deals with text, it also deals with images and other type of AI services, right? So I really liked it, so let me check it. देखो, आप ऑडियंस को दिखाओ कि आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, और हम Exactly, yeah. आपके लिए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टफ लाते रहेंगे। Yeah. These, see, there are range of AI tools मैं अभी brought in करूंगा, and I have a lot of content which I have kept it. Okay, I'll brought those things up, and that we can discuss. And I really wanted to do that. So here, write a factual content on the latest topic, including today's news. Okay, create digital artwork and visual for any purpose. Give voice command instead of typing. I can give voice command. Use case email article. Articles, essays, ads, social media post, answer, product review, etc. Everything can be हाँ, done कोई with भी एक this. टाइप करो, So वॉइस here, कमांड देके बैठे। हाँ। मैं ना इमेज के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओके, हाँ। so I wanted a workflow of big data architecture. Okay, let's say I'm just curious. Okay, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट कर दिया बिग डेटा आर्किटेक्चर वर्कफ्लो इन इमेज। Is it able to respond? Let's have a look. Oh God, I think okay. Something it has created. It's like supporting graphics, right? Big data architecture, but I'm not able to relate component. किस तरह से दिया हुआ है that I need आप to उसको observe. एक्सपेंड करोगे, कैन यू एक्सप्लेन दिस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। हाँ, wait. मैं इसको सेव करना चाह रहा था. Okay, let's write. Can you explain this? One of the most पढ़ो popular देवशीष। widely used language used in this. So this is, I think, typically it's such a website and mobile device and desktop application. It is complex language and required a good understanding of the basic of programming. In order to work with it, it is also often used for scientific and mathematical application. So see, it is talking about that, but the context उतना clear नहीं हुआ कि I was talking about that above image. जैसे चैट जीपीटी, अगर इफ यू शेयर ए डेटा ना, डेटा टेबल, उसके बेसिस में आप फॉलो अप क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, रिसेंटली वो व्हाट कर आई सकते डिड, हैं। आई वांटेड टू हाईलाइट कि मैंने क्या किया, 2 कॉलम बनाए, टेस्ट डेटा जनरेशन, ऑसम ऑसम टूल। मेरे को क्या चाहिए था, थर्ड कॉलम में एक सैंपल डेटा चाहिए था जो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम का डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम डाला और बोला कि आप थर्ड कॉलम में इक्वली प्रोपोर्शन में, जैसे फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम में आपका 100 गैप है, थर्ड कॉलम में 100 गैप होना चाहिए, और मेरा डेटा आप यहाँ पे नंबर, ट्राई करो तो, आप यहाँ पे ट्राई करो तो। it will okay, so I have to create that sample data, and then only I can post it here. So या wait. फिर आप इनसे ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है, एक काम करिए तो, आप मैथमेटिक्स में पूछते हैं आपको कि आप क्या पूछो तो कि कैन यू राइट एन एल्गोरिदम, Hmm. कैन यू राइट एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम ऑफ फिबोनाची सीरीज।
Fibonacci, right? Fibonacci series Uh, uh, of Fibonacci. 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 it will highlight Fibonacci. Yeah. FIBONACCI series. Okay. या So ठीक है, let's see. आपको पता ही होगा फिबोनाची सीरीज क्या होता है, Yes, 112 yes. 123 235। देखिए क्रिएट करता है कि नहीं। It should be again common. These are like even if it is trained on Wikipedia data, it should be able to do that because Wikipedia में ये बता रहा श्योर बोल दिया है, कुछ कर रहा होगा most likely. ना, it's just responded sure. That's it. अब मजाक में लिखो कि यू हैव नॉट प्रोवाइडेड मी द एल्गोरिदम, प्लीज प्रोवाइड मी द एल्गोरिदम, प्लीज प्रोवाइड द एल्गोरिदम। Second. एल्गोरिदम, Algorithm. Yeah. Please provide the. एल्गोरिदम। Okay. So let's see. नो नो, ये पीछे वाले से रिलेट नहीं कर रहा है। The algorithm is Chatsonic use on हाँ, पीछे वाले से ये रिलेट नहीं कर रहा है। यही वाला मैं इनसे पूछूँ ना, देखिए this is what the difference is. यही वाला मैं अगर if you go back to let's say chat GPT और मैंने इसको same question I asked it, okay, so आप यहाँ देखो, I asked the same question and look at this. शिट। So this is what major differences. देखिए आपका 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 आ गया, फटाफट आ गया, इसीलिए कुछ तो बात है ना यहाँ पे। Yes, yes, अच्छा exactly. देखिए, मैं आपको अगर कुछ मैथमेटिक्स के चीजें हैं तो हम एक इंटरेस्टिंग पूछते हैं। चैट जीपीटी में ये क्वेश्चन पूछो तो देवशीष कि कैन यू हेल्प अस नो टॉप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स which are not yet solved, कैन यू। वाह, वंडरफुल। Oh, okay. There are many problems and challenges in various fields that are yet to be fully solved. Here मैथमेटिक्स are में a few होगा। examples. Mathematics, one of the most famous unsolved problem is mathematics is Riemann hypothesis, which deals रीमन with the हाइपोथेसिस। distribution of prime number. Computer science, P हाँ, versus NP मुझे is पता one of the है biggest एक्चुअली open रीमन problem. हाइपोथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नंबर, आई थिंक इट इज ट्रेंड। लेकिन आप इसको ये क्वेश्चन पूछना था, बट आई हैव हर्ड दैट रीमन हाइपोथेसिस सॉल्व्ड। ठीक है, आप एक बार Okay. चेक करना तो। Okay. ये देखिए, मैं आपको चैट जीपीटी का लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे ये बेटर है देन अदर सिमिलर काइंड ऑफ हाँ, टूल्स। because वही मैं देख रहा था ना, देखिए नहीं, जो भी आप ये पूछो कि बट आई हैव हर्ड दैट रीमन हाइपोथेसिस इज सॉल्व्ड। the mistake in my previous were has not yet been proven or solved. It remains one of the most famous unsolved problem in mathematics and continues to be subject of ongoing research and investigation. Not yet solved. या लेकिन मेरे ख्याल से सुनने में आया था कि किसी ने सॉल्व कर दिया था, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हो ये चीज। But there अच्छा are अब see ये other area इसने बताया कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में क्या ओपन है, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक ओपन है, बायोलॉजी में कौन सा ओपन है, which is I like most is origin of life. Not yet हाँ well understood, and the scientists are still working to uncover the mechanism that leads to the emergence of life on Earth. Social science is the root cause of the poverty and inequality. This is interesting. Okay, what is the हाँ, root cause of poverty? अब Okay. मैं इनसे जनरल देखिए, इनके कुछ इम्बेडेड ओपिनियंस भी होते हैं। लैंग्वेज मॉडल जरूर है, बट ये लैंग्वेज मॉडल का ओपिनियन ही है। आप Exactly. अगर जैसे देवशीष आप इनसे पूछना चालू करो एक वेरी जनरल क्वेश्चन, कैन यू रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ वैक्सीन्स? ओके, बोथ साइड दो, देखो क्या आंसर आता है। Can you represent? Sorry. कैन यू रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ वैक्सीन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड? ओके, वैक्सीन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड।
It understand. That is what I love most about this. Look at this. Sure, here are the positive and negative aspect of vaccine. Positive aspects are vaccines is against disease, vaccine, so and so, so and so, so and so. And now look at the negative part of it also. We'll highlight. देखिए नेगेटिव पार्ट देता है कि नहीं। देखिए आपको बहुत ही स्पेसिफिक नेगेटिव साइड दे रहा है। ये ज्यादा चीजें लैक ऑफ ट्रस्ट जो पार्ट है उस पर कुछ परसेंटेज देना चाहिए था। तो अब देखिए हम थोड़ा सा और ये बात करते हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट पे आप कुछ डीप डिटेल दे सकते हैं परसेंटेज में कि कितना लैक ऑफ ट्रस्ट है। Mhm. देवसी सब ये मॉडिफाई करो कि कैन यू गिव एन एस्टिमेट ऑफ परसेंटेज। Yes. कैन यू गिव एन एस्टिमेट ऑफ परसेंटेज। So let's say I ask na, how much of the level of vaccine hesitancy, lack of trust is vaccine can vary depending on the number of factors, including the country, culture, and specific community in discuss program. It is smart. You cannot. ये आपको पॉलिटिकली करेक्ट बट आंसर नहीं देगा नहीं बोल ये। दिया इतना सर्वे में कंडक्टेड यूनाइटेड स्टेट फाउंड दैट 25% रेस्पॉन्स एक्सप्रेस सम लेवल ऑफ हेजिटेंसी अबाउट ग्रेड। बताया अगर देखिए बस रिसर्च है तो वो पुल आउट कर रहा, डिग आउट कर रहा बाय द नहीं, वे। इसमें बस एक ही चीज है जो आपका चैट जीपीटी में है कि एक समरी और असिस्टिव राइटिंग है, तो इसमें पॉजिटिव मॉडलिंग हुआ है। पॉजिटिव मॉडलिंग क्या होता है कि जैसे गूगल है, गूगल में आप कुछ भी सर्च करो, चाहे वो गंदी बात हो, चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, सब चीज आप लाइव देख सकते हो विदाउट एनी एन ओपिनियंस। वो आपको सारी इमेजेस दिखा सकता है। हाँ, आप सर्च इंजन से फिल्टर कर सकते हो, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है कि आप बुरे कंटेंट को लेटर पेजेस में डाल दो, लेकिन वो कंटेंट्स गायब नहीं होते हैं। लेकिन ये आपको पूरा का पूरा एक तरह से ओपिनियन को ट्यून करके देता है कि बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे असिस्टिव और समरी राइटिंग, so it's your platform, though it claims that it does not have any opinion, but it still tries to give you an opinion. Okay, because एग्जैक्टली it is and it is mentioned in their actually terms and condition. Okay, so I was reading it. उसमें पूरा हम्म क्लियरली बोला हुआ है क्यों दे वांटेड टू डू दैट वे। द या रीजन तो मैं इज जैसे 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 देवशीष ने बताया था कि अब चलिए हम कन्वर्सेशन से थोड़ा दूर हो गए, बट व्हाट वी वांटेड टू टेल यू कि बेनिफिट ऑफ चैट जीपीटी, तो हमने आपको और प्लेटफॉर्म बता रहे थे, उसी तरह देयर आर मेनी मोर प्लेटफॉर्म्स इन चैट जीपीटी। एक एक है जो आपका रिज्यूम बिल्डर है, वो आपके लिए रिज्यूम बिल्ड कर देगा। रिज्यूम बिल्डर डॉट एआई ऐसा करके है। यस So यस there are यस many platforms which can be used, which can perform similar actions like what ChatGPT does, and we'll provide you the link of top of these platforms along with our video website. Because आप जाओ, आप explore करो, आप learn करो, that's what we want. Okay. In fact, I have it. I'm just searching it. Give me a second. I'm searching it. If it is available, I'll pull it through. Give me a moment. I have these all interesting things kept in one place. And in fact, I want to save it. I want to discuss on each and every link which I have captured so far, because those each link is itself is a very vast topic. I will show you. It's kind of my collective bookmarks across all these search. And I always wanted to pull this in one of the conversation. I have it right. Look at this. Yeah, So these are the tweets I actually save it. you can generate the tweets using tweet during AI. It's a No, tweet builder. Tweet builder is a kind of AI. If you want to create your marketing presence, let me talk to you about something. You might have seen many people talking these days कि हमें लिंक्डइन में प्रेजेंस बनाना है, या हमें लिंक्डइन पे अपना पोस्ट बढ़ाना है, या लिंक्डइन पे हमको अपना एक पहचान बनाना है। आप एआई के थ्रू ये भी कर सकते हो। वो टारगेटेड आपको ब्लॉग्स लिख के दे देगा, वो टारगेटेड आपको स्ट्रक्चर बना के दे देगा, और उसके थ्रू आप इक्वल मार्केटिंग करके आप लिटरली आप अपनी प्रेजेंस बहुत कम टाइम में बना सकते हो। एग्जैक्टली ठीक है। यस ये देखिए जो मैं हम्म बता रहा था 150 टूल्स एंड वेबसाइट फॉर डेवलपर।
Okay, and then how exactly if I highlight AI based tool क्या क्या है, तो इसमें हम लोग सर्च कर सकते हैं. मेरे पास यही वाला 150 टूल्स फॉर वेबसाइट. आप अगर ये ओपन भी करते हो, you will be able to see this from here. So the similar kind of resources are available. That is I mean to say. Okay, अभी तो हाँ, AI एक में और और नहीं मिला, but available एआई है. में बहुत सारे आ गए। In एक fact, और see, I what I एक like most है, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ. एक रैंडम मैं कोड पिक कर रहा हूँ कहीं से भी, ठीक है. उस कोड को व्हेन आई एम आस्किंग ना कि आप इसको एक्सप्लेन करो, तो वो एक्सप्लेन कर देता है. दैट इज आई जस्ट प्रैक्टिकल. आप देखिए, ये सब तो लाइक सपोर्टिव एक्टिविटी है, लाइक डेफिनेटली कुड बी डन, बट फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, लाइक लिटरली मैं अभी आपको एक जस्ट आई विल पुट ए नो कोड. Okay, just give me a second. I'm pulling a code of Python and I will ask it to explain me that Python code. And it explains nothing like it. Like, this is the best thing could be happening for the user who wanted to learn it, right? Nothing you हाँ, need लेकिन further. लेकिन जहाँ तुम डिवाइसेस पुल अप कर रहे हैं एंड यूजर्स विल बी सरप्राइज्ड टू सी द बेनिफिट एंड स्पेसिफिकली डेवलपर कम्युनिटी, बट ये उनके लिए एक वरी पार्ट भी है कि अब उनको डेवलपमेंट से ज्यादा लॉजिक बिल्ड करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज पहले तो उनका कंपटीशन अपने ग्रुप ऑफ ह्यूमंस के साथ था जिनके पास ज्यादा दिमाग है, ज्यादा लॉजिक है, वो सरवाइव करते थे. अब उनका कंपटीशन लिटरली मशीन के साथ होने लगेगा. तो मशीन के साथ होने लग जाएगा तो आप सरवाइव कैसे करोगे? ठीक है. अभी जो देवसीय दिखाने जा रहा है ये होली ग्रेल होता है फॉर डेटा एनालिस्ट. ठीक है. टू राइट समथिंग इन पाइथन टू डू समथिंग डेटा एनालिसिस. बट अगर हम एक सैंपल कोड लिख दें और उसको हम पूछें एआई चैट जीपीटी से कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और वो एक्सप्लेन कर सकता है, तो आपको लिटरली इतना एफर्ट चाहिए कि आप बैठ के लिखो कोड. आप उनको सिनारियो दोगे, आपका चैट जीपीटी आपको कोड बना के दे देगा, आपको बस रन करना पड़ेगा. अब ठीक है. देखो ना, मैंने अभी क्या किया, मैं बोल रहा हूँ कैन यू एक्सप्लेन दिस कोड, आई एम ए बिगिनर, एंड देन आई पोस्टेड द कोड. द कोड डिफाइंस अ जनरेटर फंक्शन कॉल हिडिंग, ओके, और हाइडिंग जनरेटर. ये कर रहा है, ये जनरेटिव फंक्शन. जनरेटर फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन दैट जनरेट्स वैल्यू वन एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ all at once. You can think of a generator as a lazy iterator which produce a value. तो पूरा वो कोड को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक नथिंग बट इट्स जनरेटर फंक्शन है, एंड ये डेफिनेशन ऑफ दैट एंटायर कोड. जस्ट इमेजिन हाँ, तो व्हाट अब एल्स. आप ही सोचो, अब आप सोचो आपका अलग से बुक लेके पढ़ना, बुक में कलर करना पेन से, वो टाइम गया, प्रैक्टिस करने का टाइम गया. आप कोड लिखो, चैट जीपीटी पे आके पूछो, आप पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 दिन में समझ सकते हो. ठीक है. Yes, that is तो what I am surprised, like it's so deadly if it is in this way, and the combination is unbelievable. Okay, what is the application of below code? Let's say I'm asking. Okay, if I ask this, okay, this is the code, what is the application of below code? Now it will evaluate this code and then it will return. The code is a trace output of Python script. It is an output. बोल रहा है ये code भी नहीं है, ये output है. Okay, this is a, and which is a debugging tool that provide a detail so and so. ये हो रहा that अब वो output को वो explain करना लग गया. Okay, the trace timing option used for enable tracing and timing information respectively. This state file as a name of the Python script to be traced, and the trace output shows the execution time and detail of the function. Define the script for each line of the code. मतलब क्या है वो जो मैंने दिया ना, इसको ये लॉग भी मैंने दिया, वो लॉग को इवेलुएट करके बता रहा लॉग क्या है. आई डोंट हैव एनी आइडिया क्या हो रहा है इसमें, बट बेस्ड ऑन दैट just how do I say that learning capability, it is already interpreting and evaluating and responding back that kya ho raha hai, what is happening in the backend. Isn't it या fascinating? it Okay, is this. fascinating. So that's what I'm trying to say. Ki, see, there are many emblems. See, the people in this day and age, you have to act not only as a human, but literally, if you have to survive in this market, you have to act as a machine. You can no longer say that this role is privileged. This role, I can only get it by doing some high-end business courses or high-end technological courses. No, what it is leading to, it is leading towards democratization. Any person with any background, any approach, any system can literally learn everything on their own by using a simple platform like ChatGPT. I can see its applications anywhere. Let's say in India we can give it to farmers community and let them give some of the scenario. Okay, my soil is like this,
I'm trying to earn this much money, can you help me draw out a plan for that? It can do it. अभी I'm not देखिए so क्या sure कर रहा है. whether I'm not so sure how much efficient is it in multiple languages, but in future, if it is not till now, then in nearby future it will also be able to do it in Marathi language or Hindi language or Bhojpuri language or a अभी Tamil कर रहा language है. or a Telugu That is language. already happening. Look at this. Yeah. How I asked that, can you create a web page HTML structure for me for my website? ये HTML Hmm. स्ट्रक्चर बना रहा बैठ बैठ के. Hmm. ठीक है, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा ना, अभी आपको दिखाऊंगा ये HTML, मैं अभी दिखाऊंगा आपको एग्जीक्यूट हाँ, करके. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा, थैंक यू देवाशीष फॉर डूइंग इट। कि ये देखो, आप एक नया वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए एक सैंपल सा स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे दिया, हम इसको सिंपल से क्रिएट करेंगे और एक आप वेबसाइट हो जाएगा। ठीक है? आपको तुरंत बताएगा, वो छोड़िए. मैं डेली यूज का जो भी हमारा स्क्रिप्टिंग चाहिए होता है, जैसे मैं वीवी स्क्रिप्ट में मैं दो डेट का डिफरेंस चेक करना चाहता हूँ, या तो मैं देखना चाहता हूँ, एक ये सेल स्क्रिप्टिंग क्रिएट करना चाहता अब हूँ. एक बार कॉपी करके सत्या पेस्ट करो इसको। या आई एम कॉपिंग इट and I copied it and I'll open a notebook. Okay, look at this notepad, and in notepad I will paste it here and file, save as, and I'll paste in my, let's say, document as kind of a uh, pictures as of now, or no, fine, Python online. I go to documents only, no problem. Now here you can see documents. I am saving this as a .html file. Okay, so I'll say sample dot html, right? Sample dot html, right? And document में मैंने इसको सेव कर दिया, इसको क्लोज करा, and then I will open that page right now in front of you guys. ओपन कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स में गया. Okay, just a second. And then this, and look at this guys. Okay, मैं दिखा देता हूँ. If you can see my screen, ये देखिए, ये वाला पेज अभी सेव हुआ था, मैंने इसको ओपन किया राइट क्लिक करके, ओपन विथ, अब मैं इसको ब्राउजर में ओपन कर, ये देखिए स्ट्रक्चर बना दिया. अबाउट अस, ये सारा लिंक रहेगा, एंड देन अबाउट अस में जो भी बॉडी है, देन आवर सर्विसेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस, और भी बोलेंगे तो, और कॉपीराइट ये रहता है, ये स्ट्रक्चर एक बना दिया मेरे को. तो लिंक भी दे दिया है, सब कुछ इसमें क्रिएट किया. ये अबाउट का पेज है, ये सर्विस कॉन्टैक्ट अस का पेज है, एकदम स्ट्रक्चर बन गया. और डिटेल में पूछेंगे तो और बनाएगा कि गिव यू सैंपल और गिव मी सम CSS स्क्रिप्टिंग. सबसे व्हाट आई लव मोस्ट, आई विल टेल यू. ओके, इनके सो वो हियर, इसमें बोलो, इंक्लूड इंक्लूड CSS स्क्रिप्ट एंड हाँ हाँ इंक्लूड हाँ हाँ, इमेजेस। नहीं वहां तो फिर डायरेक्ट करना पड़ेगा कि इस टॉपिक में CSS. और ओके, सो लेट्स से CSS. इंक्लूड सो इसको बोलना पड़ेगा कि CSS कहाँ अप्लाई करना है. ठीक है, हाँ। तो CSS स्क्रिप्ट बताया, मैंने पूछा, वो कर सकता है. यस, आई नो दैट इट इज पॉसिबल. हियर इट्स एन एग्जांपल ऑफ CSS स्क्रिप्ट क्रिएटिंग ड्रॉप डाउन इफेक्ट नेविगेशन बार. तो ये CSS स्क्रिप्ट करके दे देना मेरे को, नेविगेशन बार में ये आएगा. तो ये अगर मानिए कोई भी लैंग्वेज में मेरे को जो चाहिए मैं पूछ रहा हूँ और ये मुझे दे रहा है, तो व्हाट एल्स आई रिक्वायर्ड, जस्ट टेल मी. यू रिक्वायर लिटरली नथिंग माय डियर फ्रेंड। आप ही बताओ ना. दैट इज, आई एम लेकिन सरप्राइज. इससे 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 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी क्या है, कैरियर स्ट्रीम क्या होगा, क्या करना चाहिए लोगों को, क्या कंफ्यूजन होगा, क्या सारी जॉब चले जाएंगी। दैट इज वेयर, हम्म, ये पूछने का मतलब ही वही है. तब तो मतलब, अब अगर मानिए कोई ये सब करता था, अगर देखिए, इम्पैक्ट राइट अवे तो नहीं होगा, लेकिन स्टेडली स्लोली तो होगा ही, क्योंकि वो लोग और वो पूछेंगे. डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और वो हम लोग अपने अगले सेशन में डीप में डिस्कस करेंगे ये सब हाँ, सारी ये चीजें। आपका एक बना दिया ये ऑलरेडी. ऐसे ही मैं जो इंटरेस्टेड है, जैसे मेरे को सेल्फ स्क्रिप्टिंग उतना डीप में नहीं आता. मैंने पूछा कि मेरे को सर्वर से, आई नीड हु आर द यूजर एक्टिव राइट नाउ फ्रॉम द सर्वर मेरे को, और लाइक सेल्फ स्क्रिप्ट से लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू. ओके, एडमिन का पूरा यूजर एक्सेस मेरे को पता करना है थ्रू सेल स्क्रिप्ट, और लेट्स से ट्रिगरिंग ए पाइथन कोड विथ सेल स्क्रिप्ट. ओके, तो कैसे कर सकते हैं. ओके, सैंपल सेल SHE.
ओके, मेरे को जिसका नहीं पता मैं वो सब पूछ रहा हूँ, ब्लॉकचेन का भी पूछूंगा, देखिएगा ब्लॉकचेन का नहीं वो बताएगा ये। होगा। देखिए लुक एट दिस, ऑडियंस वो बता दे रहा है ये, देखिए ऑलरेडी सेल स्क्रिप्ट लिख दे रहा है, ऐसे करके आप रन करो। फर्स्ट हाँ। लाइन स्क्रिप्ट यही करेंगे तो ये रन कर देगा, वो सेल स्क्रिप्ट में ये रन करेंगे, और वहां पे जो भी स्क्रिप्ट को रन करना है वो डाल देंगे, तो सेल स्क्रिप्ट के थ्रू मेरा वो पाइथन कोड रन हो जाएगा, पाइथन स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। यही और चीज है। बता रहा बैश में अगर रन करेंगे, ये कहाँ है, ये भी बैश में हो रहा है, ये भी बैश में होगा। फिर ये हाँ। है एक्सटेंशन बता रहा, अगर ऐसे करके करेंगे तो एक्सटेंशन है। एंड फाइनली अब रन द स्क्रिप्ट यूजिंग द फॉलोइंग कमांड, ये कमांड अरे मार देंगे तो वो रन फाइल रन हो जाएगा। बोलिए। हाँ सॉरी। देवशीष, जो हमारी कन्वर्सेशन अब हो गई ना, वियर कर गई है मोर टेक्निकल कम्युनिटी के लिए, डेवलपर कम्युनिटी के लिए। हम्म। लेकिन उनके लिए उनको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। लेकिन हम जनरल पब्लिक के लिए भी जाएंगे अगली बार। हम थोड़ा सा इस एरिया को एक्सपांड करेंगे कि हम जनरल लाइफ में उसके प्रिंसिपल, चैट जीपीटी के प्रिंसिपल्स कैसे लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या क्या वो मैं कवर कर इसी सकते हैं। को इसी को कर रहा हूँ, देखिए ना आप, देखिए कितना ये लगेगा। लेट्स से मैं बोलूंगा ना कि जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया, राइट, ये हमने टॉपिक हम्म। डिस्कस किया ना, तो जनरल पब्लिक के लिए क्या हो सकता है। ओके, सो मैं यहाँ जाके बोला, कैन यू समराइज द की डिस्कशन पॉइंट ऑफ फॉलोइंग एजेंडा। हम्म। ओके। हम्म। सो ये मैंने इनको बोला कि समराइज आप कर दो, ये फॉलोइंग एजेंडा जो है, देखिए आपको समराइज करके दे देगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ, वही लिख रहा है बाय द वे, ये समरीज है इसमें, इससे ज्यादा और हम लोग एआई लिख रहा है, एडिशनली बोल रहा है प्रोग्रेस एंड एडवांस रिसेंट ये। और एक ऐसा बोल सकते हैं, व्हाट वुड बी द, व्हाट वुड बी द लाइक video title where we discuss following agenda. Okay, what हम्म। should be the YouTube video title where we used following agenda for more reach? ठीक है, पूरा इसको मैंने बोल दिया कि मेरे को मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो मैंने पूछा, ये बताएगा, हियर इज फ्यू सजेशन यूट्यूब टाइटल बेस्ड ऑन द डिस्कशन एजेंडा, इवैल्यूएशन एआई फ्रॉम इट्स कॉइन टू टुडेस ब्रेक थ्रू, awesome राइट, चैट जीपीटी द फ्यूचर ऑफ एआई लैंग्वेज हम मॉडल। इतना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, हम तो इतना चीज पे है। और अब आप देखिएगा हम हर एक चीज पे बनाएंगे भी। दैट इज ठीक व्हाट है। आई एम सेइंग ना, तो मेरा जो मेरा चैलेंजेस कहाँ होते थे पता है, माई चैलेंजेस वर प्रिडोमिनेटली टुवर्ड्स दिस ओनली, कि इसमें बहुत टाइम लगता था, क्रिएटिवली सोचना पड़ता है, जबकि यहाँ दे रहा है। लेकिन यहाँ क्या है ना, आई एम लिटिल बिट क्यूरियस अबाउट अराउंड इट, कि आई ऑब्जर्व दैट अगर आप भी यही सर्च करोगे ना तो आपको यही रिप्लाई आएगा, दैट इज आई एम। तो वो, हाँ दैट्स, वो आपकी ओरिजिनलिटी ले जाता है। तो ओरिजिनलिटी में ह्यूमन ह्यूमन ही रहते हैं, बट ये गुड असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन एक ऑफ टाइम कोर्स। आएगा जब, जो कि मैं शुरुआत में आपको बात कर रहा था कि एक नया टर्म जो कि हम यूज करते हैं, एआई सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब ही यही होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर अचीव कर लेना कि जहां पे सिंगुलैरिटी में आप समझ पाओ कि आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि एआई और टेक्नोलॉजी आपसे कितना आगे निकल गया है। ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट, हमें और भी डिस्कस करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। आई थिंक वी कैन समराइज आवर सेशन हियर with the point, and then we will take it further. Any other point you want to touch base prior No, to no, we no. I summarize? want to go it literally detail because I want to talk about the business and the benefit side of it in the next call. Yes. But I think I'll leave the audience to ponder. I'll leave the audience to think more based on the links which we give, and we'll provide all the links and the movie demo of the movies generated or movie scripts created by ChatGPT or ChatGPT AI in the link in the video Absolutely. channel below, so we can connect. But it was a pleasurable talking to you, Devasis. Yeah, for me also, Dipanshuda, and I think this kind of conversation we will continue, and we'll discuss further, और भी यूज केसेस मैं लाना चाहता हूँ, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी But ओरिएंटेड यूज केसेस में हम लोग और डीप ड्राइव करेंगे, बिकॉज दैट इज आई एम मोर इंटरेस्टेड। एपीआई इसके बारे में, अभी जो इसका पेड सब्सक्रिप्शन लॉन्च हुआ है, डिफरेंस क्या है उसका,
So that I want to discuss. Okay, it is not yet came in India, but US and And Netherlands it has already started. and And we have let the conversation go it in an unstructured manner because we want to make it real. लेकिन हम अगली yes, बार उसको और स्ट्रक्चर देंगे और उसको एक टॉपिक पे ही अपना थॉट प्रोसेस लिमिट करेंगे ताकि आपके टारगेटेड क्वेश्चंस को हम हैंडल कर सकें. ठीक है? absolutely, yes, yes. ओके, थैंक यू दिव्यजीत. Okay, thank you बाय once बाय. again, everyone, for your time. If you are listening till this, definitely do share us a comment and your remarks and the questions you have so that we can respond back. And or be interesting idea where you want us to cover, discuss like this और data. अभी तो ये initial stage है, हम लोग इसको structure करने की कोशिश कर रहे हैं. आने वाले टाइम में और भी with data evidence हम लोग discuss करेंगे. And we wanted to put this forward. और मोस्टली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लोग और डिस्कस करना चाहेंगे इन अपकमिंग सेशंस गाइस. ओके, थैंक यू. थैंक यू once again Dipanshuda for your time. We'll connect again soon. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. थैंक यू दिव्यजीत.